Okay, fine. So this is your syllabus comprising of 4 units. The first one is good lab practices, biochemical techniques, preparation of buffers and reagents, principles of centrifugation, chromatographic techniques, gel filtration chromatography, ion exchange chromatography, and affinity chromatography. Okay. The second unit deals with pure biotechnology, that's gel electrophoresis, Agros and Page. Then how do we prepare a growth curve of bacterial cells? Then isolation of plasmid DNA from bacteria. Um, then growth of lambda phage and isolation of phage DNA. Then the standardization of plasmid DNA and isolation of high molecular weight DNA. So isolation of high molecular weight DNA can be done through from say fungus, from plants, from animal cells. And then you have gene cloning that comprises recombinant DNA construction, transformation. So once we clone, how we transform, and we use various strains of E. coli to transform. Like we have one DH5 alpha, BL21. So you don't have to write this. So we'll go through all of them simultaneously. So then PCR and its optimization and factors that affect PCR. So at the end, unit deals with dot plot analysis, southern hybridization, northern hybridization, western blotting, and ELISA. Okay, and when this course was made or approved by the university, so usually we used to use radioisotopes for say southern blotting, western blotting, or northern blotting, but we no longer use those because they're very carcinogenic. So we have shifted to fluorescence based probing. But still we'll have something about radiation safety and non radioisotopic procedures. So this will be about your syllabus. So let me stop the share. And if you see my screen, okay, if you can see this, this is a book that has been written, that came out just a few months back. This book was a challenge I threw in this the same MBB 505 class of I think 2018. So two students participated in this, and you can see they are the authors of this book also. So now we cannot reinvent the wheel. We cannot rewrite the same thing. Uh, so all the practicals in your syllabus are here with all the principles. So the good thing about this book is, if you want to get the ready details of the experiments that we do in plant biotechnology and how we do it, so you get this book. Okay, we have told library also to keep some copies. I don't know they have kept some copies, but it's very illustrative and very easy to understand. And if you take this book and you can do any practicals that are given in this book, the contents are the same that are in the syllabus because we wanted to make it for this course. However, since UG also has this PB21 course, so we have also ensured that all the chapters, almost all the chapters that are dealt there, are here also. Okay, so the name of this book is Advanced Methods in Molecular Biology and Biotechnology. So if you want, you can buy this book. So now, starting again, let me share my whiteboard. The first and foremost important thing in a library, in a lab, is you have to follow SOPs.
Uh, these SOPs or standard operating procedures are very important for each lab. And if you follow these SOPs, you will be able to work in a good way. Plus, you will be safe. These SOPs are designed so that you are safe. Okay, just like wearing a lab coat. Okay, you cannot wear chappals in the lab because if some acid spills on your feet, and so then you'll get burned. So it's always advisable that if when you're in a lab, you wear fully covered shoes. Okay, you wear gloves. Okay, if you're handling some carcinogenic or neurotoxic materials, like if you're making agarose gel, you have to have these gloves on, because ethylene bromide binds to DNA, causes frame-state mutations, and is very neurotoxic. Apart from this, if you are using, for example, methanol as a solvent, you cannot use methanol as a solvent as such. You have to wear safety goggles, because methanol is toxic to eyes. Okay. So plus, so all these are given in this book. You can see here, if I show you uh, my screen again. So this is the last chapter we have included. Okay, we didn't want to miss anything. So how you autoclave, how you use a PCR, how you use a distillation unit. Okay, how you use a freezer. Okay, how to deal with spills. If the spills are acidic, how to dilute them first with water and then you clean the spills. Okay, and एक अच्छा scientist वो है जो अपनी गंद खुद साफ करे. Usually what we see in labs, means in our lab I have been seeing it, that when we allow some outsider to work in a lab, they work for a while and then they make everything dirty and then they ruin our instruments and they go. So then we suffer. So if we work in a lab, feel that we should feel that this facility is ours, is of our university, and if we can benefit from it, the people or the students that are coming after us will also benefit from the same. So lab etiquettes should be there, that how you behave with seniors, how you behave with your teachers, and the lab SOPs. Like if you are running a PCR, so there's an SOP chart of, stuck on the wall beside the PCR, that you should read first and see what are the uh, SOPs. Like when you run a PCR, the hot top gets very hot because the temperature of the hot top is around 104 degree, and if you lift the your touch that 96 well plate, you can get burns. So there are many SOPs. We should not, and we cannot, will not be able to go through all of those. But you can have them from any online source, or as I recommend this book, you can get this book also. So the second important thing. So have you taken the screenshot of this syllabus? Yes, Uh, sir. okay, good. So second most Sir, important thing. sorry to interrupt, sir. Sir, there's one student. She's asking if you can allow her. No, I'll not allow now. So Okay, sir. next time she'll be on time. So can you see my whiteboard? Yes, sir. So syllabus, you have taken the screenshot, okay? So I should close it now. Okay, the second most important thing that we deal in
in any laboratory are the calculations. And if your calculations are wrong, you will not be able to do your practical right. So what the researchers say, garbage in, garbage out. If you have not designed your practical well, so you will not be able to do, because you have done all the wrong calculations. So one thing that I have ensured in my lab is that my MSc students or PhD students, that when they do research, I always tell them to show me their calculations. And to tell you frankly, most of the time they are wrong. So if they do it on their own, they're in a learning phase. Okay, so MSc students make more errors than PhD students, but still they are in the learning phase. So, but at the end of the day, they become good calculators. They do calculate. So the for most important thing in your lab is that how you make your solvents, how you make your buffers, and so for example, if I tell you the question is open to all, okay, and you can reply, okay, and you have points for that. So the questions I ask you in the lab, in these online sessions, I'll keep note of those answers, and probably you will get benefit at the end of in your final exam. So for example, if I tell you make a 1 molar solution of NaOH, what formula will you use? Anyone? So, and by molarity formula. जोर से बोले, Molarity. जोर से number बोले, of moles per liter of solution. मुझे formula बोलो. Sir, सीधी molarity की वो formula. तो definitive के And लिए हम n by कहते हैं number of 1000, sir. moles for a solution, but you have to make it in a lab. Sir, 40 grams हम add करेंगे 1 liter of water. Tell me the formula. So n by 1000, sir. Mass of ऐसे बोलो. solute. The weight of solute by weight of or Volume of solution into 1000. So number of moles of solute dissolved per liter of solution. तुम्हारी आवाज मुझे बहुत कम आ रही है. तुम थोड़ा एक मिनट, या मेरा माइक्रोफोन तो नहीं ये है. Let me check my speaker. Because I'm not able to hear you. Coach ना go. Okay, can you okay. Okay, can you again tell what molarity is equal to? Number of moles of solute per liter of फिर से तुम वही बोल solvent. रही हो. Solution. I am telling you to make 1 molar solution of NaOH, and I'm asking you for the formula. So it's the weight or the volume of solute dissolved in the dissolved in by the volume of the solution in the solvent. फिर से बोलें. The weight or volume of solute. Okay. Weight in grams, what will you say? Okay. So in of solute. Here in this case it's NaOH, right? From the outside, yes. Okay. Right. By weight or volume of solution, that's water. Okay. So what we usually write is the molecular weight of NaOH. Okay. Then you have into 1000 divided by final volume. Okay, because when you are adding NaOH, you will add a little bit volume for NaOH also. So molarity में एक चीज आप याद रखेंगे कि आप final volume, जैसे for example मैं आपको बताऊं कि 100 ml बनाना है हमें. Okay,
Okay, so this 100 ml will be the final volume. This 100 ml will be the final volume. So what you will do, you know it's 1 molar, right? So it's 1 molar is equal to the x we want to calculate, right? ये हम 12th में पढ़ते हैं. Molecular weight NaOH is 39.9999, but we take it as 40, okay? Into, so you have 1000. Okay, 100, 1000 by 100. 100 is the final volume. So these goes, okay, this goes with this, okay. So x is equal to 4 grams. Right? कोई शक? कोई शक? No, sir. Did you understand? Yes, sir. Okay. So please be responsive, okay? Don't sleep. So now, for example, okay, this was very easy, right? Let's go a step further. So if I tell you to make a solution of, say, TAE, okay? TAE is the buffer that we usually use in gel electrophoresis, and we'll make a lot of it. Okay, this T stands for tris HCl. A stands for acetic acid, and E stands for EDTA. I will not tell you that what why you use TAE, but here we'll only deal with that how to make TAE. Okay, if I tell you that is in this TAE, the tris should be say 0.1 molar. Okay, acetic acid should be say 30%, and EDTA should be say 25 millimolar. All right. So did you get my question? We had to make a solution. You can see my screen, right? Yes, sir. We had to make a solution of TAE, okay, tris acetic acid and EDTA, in which tris HCl has a molecular weight of 121.14 grams. Okay. Acetic acid should be 30%, and EDTA has a molecular weight of 292.24 grams. And I am asking you
to make say 100 ml of this, how will you make it? Anyone? So how will you make it? Okay, tell me. Did you get my question? Did you get my question? Yes, sir. So the question is, you have to make a solution of TAE that comprises. इससे पहले आपने NaOH बनाया, एक sample था, so you mix it with these many grams, and you made the final volume to 100 ml, and you got say 1 molar NaOH. Now I'm telling you, you have to make a solution that contains 3 chemicals. One is tris HCl. This tris HCl is one chemical. It's a molecular weight of 121.14 grams. Acetic acid should be 30% in the solution, and EDTA should be 25 millimolar. Okay, this is not the real recipe of TAE. TAE has different concentrations, but to make you explain, I am just asking you a question like this. So now my question to you is, how we'll make it? We have to make 100 ml of this total. Anyone? So what we do here, if the final volume should be 100 ml, we will not take 100 ml water, because 30% should be acetic acid. And plus, when we are adding these salts here, again, it will increase the volume. So what we do, the normal procedure is, what we do in our lab is we take only 50 ml water, the half of it. Okay. And in this 50 ml water, we know we have to add 30% of acetic acid. So we'll not add 30% acetic acid here. Okay. We take 50 ml water, but we'll calculate for 100 ml. So for tris HCl, again, the formula is molarity should be 0.1. Okay. 0.1 is equal to X. We have to calculate X in grams by 121.14 into 1000. Okay. Divided by the final volume, that is 50. no, we are 100. calculating for 100. 100 हम अपनी 100. चीज के लिए डाल रहे हैं 50, बट जो आपका मेन है, ये सॉल्यूशन हमें बनाना है. क्योंकि अगर हमने 100 यहाँ पर तुम लोगों ने लिया, फिर उसमें तुम्हें 30 वो भी डालना है, तो वो 130 हो गया. फिर जो इनका मॉलिक्यूलर वेट ऐड होगा, वो 135 136 चला जाएगा फाइनल वॉल्यूम. सो यू डोंट वांट दैट. फिर ये मोलर सॉल्यूशन नहीं बनेगा, इट विल बिकम अ मोलर सॉल्यूशन. सो फॉर एग्जांपल, द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलालिटी इज जनरल. In molarity, we make the final volume to 100 ml, but in molality, we add 100 ml plus the salt, तो उसका volume जो है बढ़ जाएगा. Okay, so molar solutions are little bit more diluted than the molar solutions. Okay, let's not go in that detail. So you have to have 100 ml because we have to make 100 ml. That's our goal. So this goes, okay, this goes, the point comes here. Okay, so 12.1 into 0.1 is equal to 1.21. So 1.21 grams of tris HCl you will take, and you will add it in this 50 ml water. Okay, एक अब सॉल्व हो गया. देन आप EDTA लेंगे, ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे. जरा कैलकुलेट करके बताइए, कैलकुलेट करके बताइए कितना ग्राम्स हमें EDTA डालना है. एनीवन? एनीवन? मगर जोर से बोलिए प्लीज. 2.92 grams. हाँ,
So 29.2. 224. 29.224. Okay, let's see that Twen- you are right or not. So let me 2.92. second answer is 2 point. पहला आंसर किसने दिया था? So irtifa. पहला आंसर इर्तिफा ने दिया था, ठीक है। दूसरा Sir, insha. इंशा। Okay, so let me erase. If you have any other answers, you can still speak. So, कितना 25 millimolar था, right? 25 millimolar, okay, is equal to X divided by 292 2.24 into 1000. Okay, ये 100 ml हम हमें हर एक में यही 100 ml लिखेंगे, okay, into 1000 by 100 ml. First convert this millimolar into molar, so it will be equal to 0.025 molar, right? This will go here into 2290.24. Okay, ये कट गया, 0.73. ये कट जाएगा. Okay, ये ऊपर है तो यहाँ नीचे आ जाएगा 10. So can anyone calculate कितना हो जाएगा ये? 0.73 approximately. 0.025 into 292.24 divided by 10. So it's equal to 0.7306. कितना? So ये दोनों जवाब गलत है. 0.7306. ये आपको टेल्स में पढ़ते हैं, जब वो पढ़ते हैं ना एमबीबीएस की तैयारी या सीएटी या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आप घुसे हैं, तो ये तब आपको पूछा गया था सवाल. तो this grams we will take and add in this 50 ml. पहले हमने 1.12 grams निकाला, उसका किसका? Triacil का. Then we took 0.736 grams of EDTA. Now it's asking, then we'll dissolve it. Once dissolved, we will add, so since we are making 100 ml, so 30% of this should be acetic acid. So 100 ml में 30% is equal to 30 ml. Okay. अगर ये 1000 ml होता तो उसका 30% 300 होता. Simply it's simple calculation. 30% of 100 कितना होता है? अगर किसको 30% मार्क्स आते हैं वो फेल है, तो 100 में कितने मार्क्स हो गए? 30, right? So okay, so calculate.
sorry about that. So now for 100 ml final solution, 30 ml will be your acetic acid. So what we'll do in this 50 ml, we'll add 30 ml. Okay, Excuse me. and then हाँ बताइए. क्वेश्चन जो आपने बोला कि हमें यहाँ 50 ml वाटर लेना है, दैट मींस हाफ ऑफ 100 ml. Half What of, about yes, अगर final, exactly. अगर हमारे पास कोई भी मतलब वॉल्यूम होगा, फॉर एग्जांपल 1000 ml 200 ml, देन हैव वी टेक द हाफ ऑफ दैट? हाँ, टेक हाफ ऑफ. We have to अपना वो तो अंदाजा हो जाता है. मैं बताऊँ ना क्यों. जैसे फॉर एग्जांपल आपने 30 ml 50 ml ये लिया, इस पे आपने ये 2 सॉल्ट्स ऐड किए, तो इसका वॉल्यूम Yes, थोड़ा sir. बढ़ गया, राइट. फिर आपने ये 30 ml लिया, तो ये Yes, 80 sir. ml से थोड़ा सा ज्यादा हो गया. Yes. तो फिर आप क्या करेंगे, Yes, व्हाट यू विल डू, सिंपली आप इस सारे को एक इसमें डालेंगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, जिसमें वो ग्रेजुएटेड होता है, Yes, sir. और जो 100 ml मार्क इस सारे को उसमें डालेंगे, एंड यू विल सी कि वो यहाँ तक Yes, आता है sir. कहीं पर. देन यू विल Yes, कीप sir. ऑन एडिंग वाटर टू मेक अ फाइनल to वॉल्यूम ऑफ 100 100 ml. सो ये बहुत इजी Yes, हो sir. जाता है. अगर Yes, आपने sir. पहले 100 ml ले लिया, फिर आपने उसको 30 ml, तो By adding वो solute to 130 से जी ज्यादा sir, चला will जाएगा, increase. Yes, sir. राइट. आपको बात समझ Okay, में आ रही thank है. you, sir. तो फाइनल Thank you, वॉल्यूम sir. शुड बी, हाँ, अब कभी ऐसा होता है आपने 50% लिया, जैसे 50 ml, मगर सॉल्ट इतना कंसंट्रेट इतना ज्यादा है कि वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं, 80 ml ले सकते हैं, या मतलब ना थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं, Yes, sir. 70, मगर कम हो थोड़ा सा, क्योंकि यू शुड ऑलवेज टेक इन अकाउंट कि जो सॉल्ट का वॉल्यूम होगा वो भी इसमें ऐड होगा, एंड दीज आर Add on. मोलर सॉल्यूशंस, सो मोलरिटी शुड बी. मगर रियलिटी में हम ऐसा नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि EDTA ऐसे डिसॉल्व नहीं होता है. EDTA ऑलवेज डिसॉल्व. पता नहीं, if you have done in lab, if you have started your research, and some of you people might have doing it, dissolving EDTA, making TAE or EDTA solution, you cannot dissolve TAE at a normal pH. So the pH of that solution should be 8. तो जब आप TAE बनाते हैं, तो उसमें आप NaOH की एक पैलेट डालते हैं ताकि वो डिसॉल्व हो जाए. तो इसलिए हम क्या करते हैं, the next thing, what, यहाँ तक बात समझ में सबको आ गई? Yes, sir. Okay, good. So next and the most important thing, is how we use chemicals in a lab. Okay, for example, we have to make a gel, agarose gel, that will be dealing up in next class. Okay, so उसमें आपका सोल्यूशन पहले स्टॉक, हम क्या करते हैं, स्टॉक सोल्यूशन पहले बना कर रखते हैं. स्टॉक सोल्यूशन मतलब ये हुआ कि जैसे एट होम यू मेक टी, राइट, एंड आप चीनी रखते हैं एक डब्बे में, ठीक है. उस डब्बे से हटकर भी एक स्टॉक होता है बड़ा, जिसमें आपकी चीनी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है. फिर आप जो किचन में यूज होता है वो छोटा डब्बा होता है. Now when you make tea, you don't put the whole dabba of that chini in your 1 cup tea, because that will be very sweet. Okay, you will not be able to drink it. So हम क्या उसमें एक चम्मच निकाल कर जितना हमें यूज होता है उतना हम डालते हैं. इसी तरह जब हम लैब में काम करते हैं, we should have stock solution already prepared, so that once, और स्टॉक सोल्यूशन हम हायर कंसंट्रेशन का बनाते हैं. जैसे हमने TAE अगर बनाया, जो मैंने आपको बताया, लेकिन हम अगर TAE लैब में बनाते हैं, हम 50x बनाते हैं. कितना बनाते हैं? 50x. 50x मतलब 50 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन जो कंसंट्रेशन हमें चाहिए. हमें जो कंसंट्रेशन चाहिए, दैट इज 1x. ऑलवेज वी यूज 1x. या आप PCR रिएक्शन लगाते हैं, यू हैव बफर्स देयर, दोज आर 10x बफर्स. ओके, लेकिन हमेशा याद रखें कि जो फाइनल आपका कंसंट्रेशन आपके वर्किंग सॉल्यूशन में होगा, दैट इज ऑलवेज 1x. ओके, दैट इज ऑलवेज 1x. तो उसमें लिखा रहता है, PCR की ट्यूब देखेंगे, बफर देखेंगे, उसमें देखिए लिखा है 20x, 10x, 5x, 2x, but working concentration is always 1x. Okay, so now one more formula that you should kind of drink like a taweez and remember it always. लास्ट का जो क्वेश्चन था उसमें क्या ये था? तो मुझसे पूछ रही हो, क्या बोल रहे बताओ. सर लास्ट में जो आपने क्वेश्चन बोला ना अभी सर, उसमें आपने एंड पे यही बोला ना, इन 50 ml वी ऐड 30 ml ऑफ ये जो हमने ऑलरेडी आपने दिया था क्वेश्चन में, उसके बाद क्या उसमें करना है? ठीक हो गया ना. आपका ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, इसमें आपने 50 ml वाटर डाला, राइट.
फिर आपने इसमें ट्रिस HCl डाला, राइट, जितना भी ग्राम हमें आया, राइट, और इसमें आपने क्या डाला, EDTA जितना हमें डालना है, इसको डिजोल्व किया। जब ये डिजोल्व हो गया, फिर हमने कहा था 30% एसिटिक एसिड इसमें डालता है, 30%। चूंकि हम फाइनल वॉल्यूम 100 ml बना रहे हैं, 100 ml का 30% 30 ml है, तो 30% एसिटिक एसिड हम इसमें डालेंगे। तो वॉल्यूम कितना हो गया, 50 + 30 इज 70 30 इज 80। 80 ओके, 80 एंड EDTA और इसका ट्रिस का वॉल्यूम भी थोड़ा होगा, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऐसे इतना जाएगा, ठीक है। मगर ये 100 ml नहीं है, तो फाइनल क्या करेंगे, हम डिस्टिल वाटर लेंगे, ओके, और फाइनल वॉल्यूम हम बराबर 100 तक इसको पूरा बनाएंगे। फाइनल वॉल्यूम शुड बी 100 ml। तो इसको हम पूरा पानी तब तक डालेंगे जब तक ये 100 ml तक ना आए यहाँ तक, फिर इसको मिक्स करेंगे, देन योर सॉल्यूशन इज मेड। ओके, सो नाउ Nice. if I tell you you have to make a gel or you have to make a gel, and उसमें आपको पता है कि मेरा जो TAE बफर है वो लगता है 1x। कितना लगता है, 1x मीन्स 1x कंसंट्रेशन, ठीक है। मगर लैब में हम बना कर रखते हैं 50x, ओके, और मैं आपको बोलता हूं आपको 30 ml जेल बनानी है या 30 ml TAE बफर बनाना है 1x का, मगर किससे बनाना है, 50x। अब यहाँ कैलकुलेशन और मोलैरिटी पोलैरिटी आप भूल जाओ, वो हमें यहाँ यूज नहीं करनी। So one formula that you should remember and will help you always with your experiments is working by stock into final volume into okay. So working by stock into final volume. So this formula you should remember each and every time, and ये कोई मुश्किल फार्मूला याद रखने की नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये फार्मूला डिराइव हुई है N1 V1 = N2 V2, राइट। मगर वहां पर आपको फिर कंफ्यूजन होता है कि N1 क्या है और N2 क्या है, वॉल्यूम में गड़बड़ हो जाती है। तो दिस फार्मूला इज गुड, यू शुड रिमेंबर इट। सो इफ आई टेल यू टू मेक 1x सॉल्यूशन ऑफ 30 ml फ्रॉम 50x, 50x कितना भी ml हो, 1000 ml हो, 2000 ml हो, हमें उससे कुछ नहीं है। हमें सिर्फ देखना है कि इस 50 ml में से हम कितना लें और उसको कितना वाटर डालें, डाइल्यूट करें, ताकि वो 1x बन जाए। मगर हमें फाइनल वॉल्यूम कितना बनाना है, 30 ml। सो वर्किंग सोल्यूशन कितना हुआ यहाँ पर, वर्किंग सोल्यूशन कितने कंसंट्रेशन का हमारे पास हमें चाहिए, 1x 1x, ओके, 1x हमें चाहिए, ओके। और स्टॉक सॉल्यूशन कितना हमारा पास TAE का है, 50x स्टॉक इज 50x, गुड, 50x इनटू फाइनल वॉल्यूम कितना हमें चाहिए, 30 ml 30 ml, ओके। सो हमेशा यूनिट आप काटेंगे, x जाएगा, ओके, ये 0 0 जाएगा, 0.6 ml 3/5 कितना हुआ, 0.6 इक्वल टू ml 0.6। 0.6 ml क्या यूनिट क्या बच गया, ml, क्या बच गया, ml दिस इज इक्वल टू 600 माइक्रोलीटर्स। और हमारी लैबों में पाइपेट होते हैं दैट कैन मेजर इवन अप टू 0.2 माइक्रोलीटर्स। 1 microliter is equivalent to 10⁶ liters, okay। 1 ml is equal to 10⁻3, 10⁻3 ml is equal to 1 liter, 10⁶ microliters is equal to 1 liter, okay। So 1000 microliters makes 1 ml, ओके। 1 ml का भी पाइपेट है आपके पास और आपको 0.2 माइक्रोलीटर का भी पाइपेट है। तो वहां पर 1000 ml माइक्रोलीटर से आप 600 माइक्रोलीटर सेट करेंगे। अब क्योंकि हम लैब में होते तो मैं आपको दिखाता, लेकिन हम लैब में नहीं है, तो यू हैव टू काइंड ऑफ डील विद इट। तो 600 माइक्रोलीटर हमने डाला, क्या डाला, 600 माइक्रोलीटर हमने डाला इस 50x का, stock किसमें डाला, solution
30 ml. नहीं 30. एक फ्लास्क में। ओके, अब अगर हमने ये जो कैलकुलेट किया है, दिस इज योर फाइनल वॉल्यूम, क्या है, तो हम क्या करेंगे, 30 ml से -0.6 ml करेंगे, कितना बचा, 29.4 ml हम इसमें वाटर डालेंगे, प्लस 600 माइक्रोलीटर और 0.6 ml ये गया, तो कितना हुआ फाइनल वॉल्यूम, 30 30. ml. So 30 ml will be your final volume. ये बात आपको समझ में आई, ये बात आपको समझ में आई? No, sir. नो सर, किसको समझ नहीं आई बताइए? सर रिपीट कीजिए। ओके, so now for example let me take another example. For example आप ने यही टीए लिया, ठीक है, टीए आपने लिया, okay, that will make it more complex. Okay, let's take another example. For example आपको एक solution बनाना है जिसमें फाइनल कंसंट्रेशन आपकी 25 माइक्रो मोलर है, ओके, ऑफ से NaCl, क्या है, 25 माइक्रोमोलर कंसंट्रेशन इज योर वर्किंग। आपकी लैब में 1 मोलर NaCl बना हुआ है, जब हम NaCl बनाते हैं ना, हम थोड़ा हायर कंसंट्रेशन बनाकर रखते हैं और उसी को फिर हम डालते हैं, डाइल्यूट करते हैं। टीए बनाने के लिए हम ऐसे ही करते हैं, हम ऐसे सारा नहीं, हम EDTA बनाएंगे हायर मोलैरिटी का, फिर उसको डाइल्यूट करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू आपको बनाना है 25 माइक्रोमोलर NaCl फ्रॉम 1 मोलर NaCl जो आपका स्टॉक है, और कितना बनाना है, से 100 ml आपको फाइनल वॉल्यूम है। आप मुझे बताइए, आप तंजीला के फॉर्मूला क्या लगेगी, वर्किंग बाय स्टॉक, गुड, वर्किंग बाय सर ये स्टॉक, सेम वर्किंग बाय स्टॉक इनटू फाइनल वॉल्यूम। इनटू फाइनल वॉल्यूम। आप मुझे बताइए वर्किंग कितना है, 25 माइक्रो, 25, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, okay, so so you can see it. So this is the formula that you have remembered, working by stock into final volume. अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक सोल्यूशन बनाना है 100 ml का, जिसकी फाइनल कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 25 माइक्रोमोलर, राइट, और आपको लैब में ऑलरेडी बना हुआ है 1 मोलर NaCl, ठीक है, कोई शक, इसमें कोई शक है? नो सर। नो। Now formula you will use working by stock into final volume. So वर्किंग है आपका 25, हमेशा यूनिट्स आप साथ लिखेंगे, माइक्रोमोलर, ओके, देन डिवाइडेड बाय कितना बताइए, 1 molar. हाँ, 1 मोलर, मोलर, 1 Molar. मोलर। गुड, एंड देन इनटू 100 ml. Into 100 ml. इनटू 100 ml, गुड, हमेशा हम वॉल्यूम्स साथ रखेंगे। अब हमारे पास एक मसला हो गया कि यूनिट हमारे डिफरेंट है, तो हमेशा एक चीज याद रखे कि यूनिट्स आपको साथ लाना, हमेशा सेम यूनिट्स लाने, ठीक है, अगर ऊपर माइक्रोमोलर है
तो नीचे भी माइक्रोमोलर होना चाहिए, या अगर नीचे मोलर है ऊपर भी मोलर होना चाहिए। Molar. इसके अलावा एक और तरीका भी है जो इसके बाद में आपको बताऊंगा, उसमें आपको यूनिटेज चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, मगर यहाँ पर विल चेंज द यूनिट्स। तो 25 माइक्रोमोलर इज इक्वल टू, क्या हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 25, no, if I divide by 1000 it will be 0.025 मिलीमोलर। कोई शक? No, sir. एक माइक्रोमोलर इज 10⁻⁻6 मोलर और 10⁻³ मोलर। 10⁻³ मीन्स 1000 से डिवाइड करो, तो 25 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.025 मिलीमोलर। मैंने ऊपर वाले, अगर मैं ज्यादा इसको करता ना 1000 से मोलर बनाने के लिए, तो वो ज्यादा हो जाता है और उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो बेटर है इन दोनों को मैं एक ही इसमें लाऊंगा, ठीक है। एंड 1 मोलर में कितने मिलीमोलर होते हैं, 1000 मिलीमोल्स, राइट? कोई शक? No, sir. No, sir. ठीक है, मैंने क्या किया, इसको भी मिलीमोल्स में लाया, इसको भी मिलीमोल्स में लाया, मिलीमोलर में लाया, इनटू 100 ml, ठीक है। तो नाउ अब कैलकुलेशन करेंगे, व्हाट विल डू दिस, पहले आप यूनिट्स काटेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा फाइनल जो है, फाइनल वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम का मेजर करना है कि हम इसमें से कितना वॉल्यूम ले जो हम ये बनाएं और उसको कितना डाइल्यूट करें ताकि फाइनल वॉल्यूम हमारा 100 ml बने। तो हमें ml वहीं रखना है क्योंकि ये हमारा फाइनल जो हमें चाहिए, ये ml n1 v1 n2 v2 से यहाँ पर होगा, ठीक है। तो दिस मोलर मोलर विल गो, दिस 100 एंड 100 एंड दो जीरो गए, ठीक है। तो दिस विल बी 0.0025 ml। अब लैब में कैसे मेजर करेंगे इसको, इंटू कीजिए 1000, कितना हो जाएगा, 0 इंटू 1000 करेंगे कितना होगा, 2.5 माइक्रोलीटर्स, ठीक है। 0.025 ml और 2.5 माइक्रोलीटर्स हम क्या करेंगे, हम किसमें से लेंगे, किसमें से लेंगे, स्टॉक से लेंगे। स्टॉक क्या है, 1 molar. 1 1 मोलर। ml. स्टॉक हम लेंगे मोलर 1.5 माइक्रोलीटर, ओके। इसको डालेंगे हम एक फ्लास्क में, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में या किसी में भी, ठीक है, डाला हमने इसको इसमें, एंड फाइनल वॉल्यूम हमारा 100 ml। अब ये 2.5 माइक्रोलीटर्स है, ये कहने होता है वॉल्यूम फर्क क्या है, सुना, ये 100 ml है, तो अगर आप 100 ml भी डालेंगे यहाँ पर चल जाएगा, मगर मेनली ये है कि 100 ml माइनस 0.0025 ml करना है, मगर इतने छोटे क्वांटिटी में उतना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये बहुत हाई क्वांटिटी है, तो हम 100 ml ही डालेंगे। तो ये क्या बनेगा तुम्हारा फाइनल वॉल्यूम, ये। अब दूसरा, ये इस बात समझ में आ गई तुम्हें, तुम लोगों को आ गई बात समझ। दूसरे एग्जांपल से Yes, सेम sir. 1x/50x इंटू जो फाइनल में, वैसे Yes, हमने ये sir. भी किया। अब कभी क्या होता है कि हमें कन्वर्जन हमें न करना पड़े, क्या हमें कन्वर्जन न करना पड़े, इसके लिए भी एक है, एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताऊंगा। वो क्या है, वो मतलब नॉट राइट वे टू डू बट फास्ट वे टू डू, एंड ये हमेशा सही है, ये कभी गलत नहीं होता है ये। तो जैसे फॉर एग्जांपल आई विल गिव एन एग्जांपल, जैसे हमें से your stock or say your working is equal to 25 micromolar, okay, and your stock is equal to say 10 ml, नहीं सॉरी 10 ml कैसे होता है, 10 मिलीमोलर, और आपको 50 ml बनाना है। ये बात समझ में आ गई आपको?
ये बात समझ में आ गई आपको? ये क्वेश्चन समझ में Yes, आ गया sir. आपको? से फॉर जी एग्जाम्पल सर, जी आपको बनाना है 50 ml. NaOH, कोई मसला नहीं, NaOH यूजुअली हम इसको नॉर्मलिटी में लेते हैं तो हम NaOH एग्जांपल नहीं देंगे। कोई और केमिकल का नाम बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 हमें बनाना है, we have to make CaCl2. Stock we have how much? 10 millimolar. Stock is 10 millimolar. Good. This is your stock. Working is 25 25. micro. 25 micromolar. वर्किंग और स्टॉक की जो यूनिट है सेम हो जाए, ऐसा नहीं हो कि स्टॉक आप लिखेंगे ml में और वो लिखेंगे माइक्रोमोलर में, वो नहीं, मोलैरिटी हमेशा स्टॉक शुड बी सेम। यहाँ पर क्या है, यहाँ मोलैरिटी वी आर टेकिंग, ठीक है। एंड 50 ml इज योर फाइनल वॉल्यूम। तो Volume. इस केस में क्या होगा, इस केस में वर्किंग बाय स्टॉक इज 25 माइक्रोमोलर। ओके, कोई शक? No, sir. No, sir. बाय टेन मिलीमोलर, ठीक है, कोई शक, इंटू 50 ml। क्या ये फॉर्मूला सही है? क्या ये फॉर्मूला सही है? हाँ, Yes, sir. गुड। Yes sir. No, इशू sir. माइक्रोमोलर, इशू मिलीमोलर। ओके, अब हम कन्वर्जन यहाँ पर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम यूनिट्स भी आपस में काट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये मिली मोलर है तो मैं सिर्फ मिली का एम काटूंगा, मिली, और मिलीलीटर का यहाँ एम काटूंगा। M. मिली 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 मैंने काटा, यहाँ मोलैरिटी भी मैंने यही रखी और लीटर भी मैंने यही रखा। ये मोलर का एम मैं काटूंगा, यहाँ भी मोलर है, यहाँ का मैं एम काट सकता हूँ, ठीक है। तो ये 10 गया, ये यहाँ से ऐसे बच गया, 5 × 25 कितना हुआ, 125 इज इक्वल टू 125। ये सिर्फ माइक्रो बच गया ना, माइक्रो का माइक्रो मैं यहाँ लिखूंगा माइक्रो, और ये लीटर का एल मैं यहाँ लिखूंगा तो लीटर, इक्वल टू 125 माइक्रो लीटर। अब आप इसको कन्वर्जन करके देखिए, दैट मीन्स कि 125 माइक्रो लीटर आई विल टेक, ओके, विल ऐड इन अ फ्लास्क एंड उसमें 50 Final volume minus 50 ml. 125, 50 minus 0.125 ml। अगर उसको मैं ml में वापस कन्वर्ट करूँ 125 माइक्रोलीटर को ml में, वो जितना हो जाएगा 49 पॉइंट व्हाट, वो 49 पॉइंट वो वाटर में इसमें डाल दूंगा, एंड दिस विल बी योर फाइनल वॉल्यूम, फाइनल डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ 25 माइक्रोमोलर। आपको ये बात समझ में आई कैसे हमने किया? इसमें हमने Yes sir. यूनिट्स क्या, मिली को मिली से काटा, हम माइक्रो को माइक्रो से भी काट सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कैलकुलेशन लैब में फास्ट कर सकते हैं। मगर अब मैं आपसे कहूंगा, अब आप इसको जरा एक मिनट राइट वे में किए, क्या हम सही है कि हम गलत है। कन्वर्जन अगर हम करेंगे, तो अगर हम कन्वर्जन करेंगे तो 25 माइक्रोमोलर विल बी इक्वल टू 0.025 मिलीमोलर, राइट? कोई शक? डिवाइडेड बाय 10 मिलीमोलर Yes, sir. into 50 ml, right? मिलीमोलर पूरा जाएगा मिलीमोलर के साथ, ये 10 इसके साथ जाएगा, तो जरा कीजिए 25 into 0.025 सॉरी 5 into 0.025 is equal to 0.125 ml. ml. You should ml, you should ml, that means ml, good. So 0.125 ml is equivalent to 125 microliters. 125. माइक्रोलीटर, कितना इजी है, कोई शक? बस आपको बात समझ में आ गई हम कैसे करते हैं?
Yes, sir. Yes. गुड। नेक्स्ट कभी क्या होता है हमें कभी कंसंट्रेशन मिलीग्राम पर मिल में होती है। किस में होती है? जैसे हर एक का आप मोलैरिटी वाइज नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल ताइतुलु एक मिक्सचर आपने उठाया, कोई एक्सट्रैक्ट किया, उसका आप वेट करेंगे, उसका कुछ वेट है, उसको आप डाइल्यूट करेंगे। बिकॉज यू डू नॉट नो द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दोज, यू कैन नॉट नो द मॉलिक्यूलर वेट। व्हेन यू डू नॉट नो द मॉलिक्यूलर वेट, आप उस टाइम में क्या करेंगे? उस टाइम हम मिलीग्राम पर मिल, उसकी हम कंसंट्रेशन विल बी इन टर्म्स ऑफ मिलीग्राम पर मिल और माइक्रोग्राम पर मिल, जो हम फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, जहां तक बात आपको समझ में आ रही है? कोई शक? कोई शक? No, sir. So what we do, for example, हमें एक फ्लास्क में मीडिया है, ठीक है? जो पैथोलॉजी वाले हैं वो ज़्यादा समझेंगे इस बात को, लेकिन यूजी में अगर आपने पैथोलॉजी ठीक से पढ़ा है, हम बैक्टीरिया कल्चर ग्रो करने के लिए पैटी प्लेट्स यूज़ करते हैं जिसमें अपने बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, राइट? कोई शक? तो इसमें हम पहले मीडिया डालते हैं। जैसे एक एलबी मीडिया होता है, जैसे लीडो बर्टनी यूजली हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया कल्चर के लिए, या अगर फंगस करना है तो पीडीए करते हैं यूज़, पोटैटो डेस्ट्रो अगर, और इसके अलावा भी बहुत सारे मीडियम्स हैं, ठीक है? मैकॉन की अगर और पता नहीं क्या क्या व्हाटएवर। सो हमें एलबी मीडिया है 100 ml। क्या है? 100 ml। मगर हमें इसमें एक ऑर्गेनिज्म ग्रो करना है, ये बैक्टीरिया है फॉर एग्जांपल, ये हम ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ेंगे, जिसका बैक्टीरिया में एक अपना क्रोमोसोमल डीएनए होता है। इट्स नॉट अ क्रोमोसोम बट वी कॉल इट एज अ क्रोमोसोमल डीएनए एंड और अ न्यूक्लियर डीएनए, और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है दैट्स इन द फॉर्म ऑफ अ प्लाज्मिड। और इस प्लाज्मिड पे फॉर एग्जांपल एक जीन है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का। क्या है? एम्पिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक, and if this plasmid is present in this bacteria will be able to grow on ampicillin। जैसे आप देखते हैं ड्रग रेजिस्टेंस आजकल जो है, अर्लियर वी यूज्ड टू यूज ईटर एम्पिसिलिन और एमॉक्सिलिन का इंजेक्शन करते थे बचपन में हम, तो हम ठीक हो जाते थे। मगर आज हम उससे ठीक नहीं होते, क्योंकि बैक्टीरिया में ये जिसको बोलते हैं मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस, ये प्लाज्मिड्स जा चुके हैं एंड दे आर रेजिस्टेंट टू दिस, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो इंसान की बीमारी करते हैं। तो नाउ दिस एम्पिसिलिन विल नो लॉन्गर एबल टू ट्रीट। अब हम करते हैं एजिथ्रोमाइसिन यूज, या बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, जो मिक्सचर ऑफ एंटीबायोटिक्स होता है, सो दैट कि ये बैक्टीरिया अगर एक से नहीं मारा दूसरे से मर जाएगा। ओके, तो नाउ माय क्वेश्चन इज, वी हैव टू मेक अ सॉल्यूशन जिसमें हम चाहते हैं सिर्फ हमारा यही बैक्टीरिया ग्रो हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा इस मीडियम में हम एंटीबायोटिक डालते हैं। इस केस में हम क्या डालेंगे? एम्पिसिलिन। ओके, क्या डालेंगे? एम्पिसिलिन। Ampicillin we have already we make a stock। we make a stock। हम stock ampicillin का कितना बनाते हैं? that is equivalent to say 50 माइक्रोग्राम, नहीं सॉरी मिलीग्राम पर मिल। क्या बनाते हैं? 50 मिलीग्राम पर मिल कंसंट्रेशन होती है स्टॉक सोल्यूशन ऑफ एम्पिसिलिन जो हमें बना हुआ है। कोई शक? दिस विल बी योर स्टॉक। एंड वर्किंग सोल्यूशन इसमें हमारी अराउंड होती है 50 माइक्रोग्राम्स पर मिल। 50 micrograms per mil। If I tell you how much of this 50 microgram per mil, sorry 50 milligram per mil ampicillin will add to 100 ml to make a final concentration of 50 microgram per mil। अब ये आप मुझे कैलकुलेट करके दीजिए। अभी मैं क्वेश्चन फिर से लिख लेता हूं। यूर हैव अ स्टॉक ऑफ 50 milligram per mil, 50 milligram per mil, okay, and you have a working of 50 micrograms per mil। कोई शक?
एंड जो आप फाइनल बनाना चाहते हैं या इसको फाइनल कंसंट्रेशन में डालना चाहते हैं वो कितना है? फाइनल जो वॉल्यूम है आपका से 100 ml है। अब मुझे आप बताइए कैलकुलेट करके कि इस स्टॉक में से हम कितना लेंगे और इसमें डालेंगे कि उसकी कंसंट्रेशन हमें वर्किंग की बन जाएगी 50 माइक्रोग्राम पर मिल की। जरा करके बताइए। कैन एनीवन शेयर हिज और हर 100 स्क्रीन एंड शो मी microliter. हाउ विल डू इट? व्हाइट बोर्ड शेयर कर 100 सकता है कोई अपना? microliter. 100 microliters. 100 microliter. हाँ 100 100 microliter. microliter. कौन बोल रहा है ये? Rana Afreen. कौन बोल रहा है? Rana नाम बोलो ना। Afreen. Rana Afreen. राना आफरीन। Rana Afreen says this should be 100 Microliter. microliter. Any other answer? Same. Any other answer? Same. 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 राना आफरीन और सेम किसने बोला? Zainab. हाँ जैनब। Zainab. जैनब और anyone who says that these two are right? Sir Nazia. सर इसको फिर बाद में माइनस भी करना है ना सर? इस कैलकुलेशन से 100 माइक्रोलीटर आ रहा है लेकिन फिर इसको माइनस करना होता है ना? मैं बताऊंगा एंटीबायोटिक के केस में हम क्या करते हैं। So now you have 50. Okay, let me write it here in this way. $50 microgram per mil. Okay, कोई शक? Divided by how much? 50 milligram per mil. Okay. Okay, कोई शक? 1000. No, sir. Into तुम लोगों को बात समझ में आ रही है कि बस तुम हाँ हाँ सारे हिला रहे हो? Final volume is 100 ml. Okay. ना जब इस टाइप की कैलकुलेशन हो अगेन इसमें हम पुराना वाला रूल अपनाएंगे कि ये नीचे वाला ml और ये नीचे वाला ml तो गया, राइट? कोई शक? कोई शक? No, sir. Now No, this sir. milli and this milli can go. This gram Gram and this gram can go. This 50 and this 50 will go. So you are left with 100. micro. You are left with this micro and you are left with this liter. So 100 microliters of, so these two are correct. Rana Afreen and Zainab. Good. So 100 microliters you will take from this stock, add it in 100 ml. Now talking about volume. So what you are doing here is 100 ml minus 0.1 ml is equal to 99.9 ml. मगर इतने कम वॉल्यूम से हमारा कंसंट्रेशन का इफेक्ट उतना नहीं होगा, इसलिए हम इसको 100 ml डाल सकते हैं। ये हमारी ईज के लिए है और इसमें हमारे रिजल्ट बिल्कुल सही आएंगे, इसमें हमें कोई मसला नहीं होगा। हाँ, जहां पर वॉल्यूम इफेक्ट हो, जैसे तुम्हारा अब फॉर्मल मैथ में बताऊं कि 1x सोल्यूशन बनाना है फ्रॉम 2x। ओके, 1x सोल्यूशन बनाना है फ्रॉम 2x। कितना बनाना है? हमें बनाना है से 80 ml। Hold on a second.
बात समझ में आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं? Yes, sir. ओके गुड। सो कहाँ थे हम? नाउ मेरा सवाल है ये, लेट मी पिक यू गाइस। अब ये इसका जवाब कौन देगा? महापारा रशीद, जरा इसका जवाब दो आप। आपके पास 1x वर्किंग है, 2x स्टॉक है और 80 ml आपको बनाना है। जरा बताइए कैसे बनाएंगे? सर वही वर्किंग बाय स्टॉक इनटू फाइनल वॉल्यूम। ओके, सो क्या है वर्किंग? 1x 1x 40 आता है, 40 ml 1x डिवाइड बाय 2x 2x into इनटू 80 ml 80 ml। गुड। 40 ml x जाएगा, गुड, बच गया 40 ml। अब 40 ml आप लेंगे किससे? इस 2x सॉल्यूशन। 2x। तो यहां पर वॉल्यूम का इफेक्ट होगा, क्योंकि अब आप ये नहीं करेंगे कंसिडर कि है मिनिमम 40 ml तक कोई फिश। अब आप 80 में से माइनस करेंगे 40, क्योंकि ये 2x ये बिल्कुल हाफ हो रहा है। तो क्या बचा? 40 ml। तो 40 ml आप इसमें वाटर डालेंगे। 40 ml चुना, आप देखो हाफ हाफ हो रहा है। तो यहां पर आप वॉल्यूम जो हमने वहां पर किया कि चल जाएगा, 0.1 ml है, बिकॉज मेन हमारा पर्पस वहां पर है बैक्टीरिया हमारे ग्रो, हम सिर्फ वही बैक्टीरिया ग्रो होने चाहिए जिनमें रेजिस्टेंस है, बाकी बैक्टीरिया मारे जाने चाहिए, जो हम ट्रांसफॉर्मेशन में भी आगे पढ़ेंगे। तो यहां पर आप लोगों को you will be adding, so this always will be your final volume. Okay, in case of antibiotics no problem, क्योंकि एंटीबायोटिक बहुत कम कंसंट्रेशन में हमें यूज करना होता है, so microliters won't affect। हाँ, जहां पर आप लोगों को वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, वहां पर आपको बिल्कुल ये फाइनल वॉल्यूम लेना है और उसको माइनस करना है अपना जो स्टॉक का वॉल्यूम आपने लिया। बात सब समझ में आ गई सबको? बिकॉज नाउ आई विल गिव वन बिग क्वेश्चन। ओके, अब हम टीएई पर वापस आएंगे, ठीक है, क्योंकि टीएई सॉल्यूशन जो आपका है वो बहुत, बट आई वांट टू सी ओके गुड। अब क्वेश्चन मेरा सुनिए, आप अच्छे ध्यान से सुनिएगा, एंड जो ये क्वेश्चन मेरे को करके देगा उसको मैं +1 नंबर इन योर मीटर। You have to make a solution of say TAE again is equal to tris HCl, ये tris HCl एक ही salt है, plus acid plus EDT। ये सॉल्यूशन आपको बनाना है। क्या हुआ? Okay.
Let me Google it. अब ये जो TAE solution है, what you do here, आप क्या करते हैं, ट्रिस HCl, ये जो हम TAE बना रहे हैं, this TAE is 50x. क्या है? 50x सोल्यूशन है। इसमें आप ट्रिट्स HCl डाल रहे हैं 242 grams. ओके, 11.4 ml डाल रहे हैं आप ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड क्या हो गया, एंड 20 ml of 0.5 molar EDTA. So आपको 50x TAE बनाना है. You have to make the solution in which you will add 242 grams of Tris HCl, 11.4 ml of glacial acetic acid and 20 ml of 0.5 molar EDTA. अब आपको मुझे क्या बताना है? एक चीज नहीं बतानी, आपको मुझे तीन चीजें बतानी। एक चीज आप मुझे बताएंगे कि ट्रिस HCl की मोलैरिटी कितनी होगी इस सॉल्यूशन में। ओके, ट्रिस HCl की मोलैरिटी एक बतानी है। दूसरा आप मुझे बताएंगे कि ये कितना परसेंट हमने ग्लेशियल एसिटिक एसिड डाला इसमें, एंड तीसरा आप मुझे बताएंगे कि फाइनल concentration of EDTA in the final solution. आप समझे सवाल क्या है? सवाल ये है कि I am telling you to make, हाँ समझ आ गया? वॉल्यूम आपने दिया है, फाइनल वॉल्यूम। Final, good. Final volume will be say your 1 liter. So you have to make this solution, and I'm asking you what will be the molarity of Tris when you add 248 grams in 1 liter. What will be the percentage of 11.4 ml in this 1 liter, and
Fine, you are adding 20 ml of 0.5 molar EDTA through a formula of N1V1 working by stock into final volume. तो आपको मुझे बताना है final concentration of EDTA in the final solution क्या होगी, and your time starts now. सवाल समझ आ गया ना सबको? Who is answering? Sir, So molarity of tris HCl 1.99, approximately 2. sir, मेरा निकला एक 0.41 मिनट, पहला मोलर। किसने बोला? पहले किसने बोला? मैं राना आफरीन। राना आफरीन। क्या बोल रहे हो तुम राना आफरीन? So one molarity of tris HCl 1.99. एक मिनट, 1.99, ओके। दूसरा कौन बोल रहा है? Sir, मेरा निकला 0.41। इंशा टाक, हाँ? क्या यही इसी का आंसर? Yes, sir. 0.41। और कोई? सर 1.99। कौन? सर इमराना। इमराना टाक। यस सर। 1.99। Sir, 1.99। मेरा ही गलत है। 1.99। यस सर। और बाकियों का? Okay, let's first calculate this. Okay, so now you have to calculate molarity. You know the formula is equal to, you are taking 242 grams, okay, into 1000. Then you take divide by, what is the molecular weight of tris HCl? 121.14. 14. Good. Into कितना करेंगे? So divide by आएगा फिर से 1000. Final volume जो 1 liter आपने बोला. Good. So ये calculate करके आता है 1.99. ये गया, ठीक है, 242 divided by 121.14, उसको 1.9976. Yes, sir. So you both are correct. Good. So तुम लोगों को एक एक नंबर मुझे याद दिलाना मिड टर्म में, ठीक है? इमरान टाक एंड राना आफरीन. What our next one? What percentage of GAE is in the solution? Sir, what is this 1 to 1.14? Okay. This is the molecular weight. ये कौन पूछ रहा है? जो हमने पहला सवाल किया था कि ट्रिस HCl का हमें इतना मोलर बनाना है, तो मोलेकुलर वेट हमने वहां बता दिया था. अगर आपको नहीं था तो यू कुड हैव ऑलवेज गूगल्ड ऑन मोबाइल कि इसका मोलेकुलर वेट क्या है,
ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट हमें पता नहीं होती, याद नहीं होता, तो यू कैन सिंपली गेट इट, यू कैन गूगल इट, मॉलिक्यूलर वेट का कोई मसला नहीं है। तो ये कौन पूछ रहा है वैसे? सर मैं पूछ रही थी। इंशा टॉक, ओके। तुम्हें कैसे आया 0.41? एक्चुअली मैंने ये गलत किया, 2 डिवाइड किया था इसको। डिवाइड किसे किया था? मैंने इसको 2/4 डिवाइड किया था एक्चुअली। अच्छा, तुमने उल्टा किया था, ओके ठीक। अब क्लियर है? Okay, good. So next one is what percent of GA is in the solution? 11.4%. 1.14. 1.14. 1.14 किसने बोला? 1.1000 है. 11.4 Yes, किसने sir. बोला? 1.12. Sir, Sir, Rana Afri 1.12. रना आपने बोला 11.14 है? 1. No, sir, No, sir. 1.1. सर 1.14 ही है. 1.14. So it's simple. 1000 11.4 Yes, sir. divided by 1000. छोटा? 1000 Into into 100. 100. into 100. Into 100. Good. So you are getting it. I'm happy. So 1.14% होगा तुम्हारा ये glacial acetic acid in. Specialistic acid. Now coming to third question. We are adding 20 ml of 0.5 molar EDTA to make a final volume of 1 liter. इस solution में 1 liter final volume. तो final concentration कितनी होगी इसकी? ये बता दो, इसके बाद we'll stop. Anyone? Majid Rashid, can you come in? जी सर. Can you solve it? Suhail Manzoor. Aina Bhatt. Tabia Fayaz. So is it 0.01 more? ये कौन बोल रहा है? Rana Afrin. सिर्फ राना आफरी नहीं है यहाँ पर. 0.1 0.1 molar. molar. Rana Afri. Which is your division? The soil science. Anyone else? Anyone else? समझ नहीं आया आप लोगों को क्या? Simple. When you get these kind of calculations, you have to take Multi-volume. everything separately. You have to take everything separately. बाकियों को आपको भूल जाना है. अगर आप बाकियों को भी याद रखेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे. आपको एक चीज याद रखनी है, या तो फाइनल वॉल्यूम रखना है और इसकी कंसंट्रेशन इसमें कितनी है. Simple. So if we follow this, we know that we are adding 20 ml of 0.5 molar EDTA in final volume of 1 liter. So जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, वर्किंग बाय स्टॉक इनटू फाइनल वॉल्यूम, ओके, ये क्या है? इज द वॉल्यूम वी ऐड, ओके, फ्रॉम द स्टॉक टू मेक अ वर्किंग सॉल्यूशन. अब मुझे बताइए, यहां पर मुझे बताएगा आदिल गनी विल टेल मी कि यहां पर फाइनल वॉल्यूम कितना है. 1000 ml. तुम आदिल गनी हो?
आदिल सो गया? इर्तिफा लतीफ खान, जी सर, यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम 1 लीटर है ना? गुड। 1 लीटर आपका इक्वल टू 1000 ml, राइट? ठीक है, 1.25. 1 लीटर को ना 1000 ml, कोई शक? जी सर। आप मुझे बताइए कि स्टॉक सॉल्यूशन कितना है? ये मुझे 0.5 बताइएगा नाजिया नबी। सर क्या? स्टॉक सॉल्यूशन कितना है कंसंट्रेशन? Solution 0.5 0.4 molar. सर 50x है ना? कितना? 0.5 0.4 का क्यों? सर 0.5 0.4. ये पॉइंट 0.5 ये नहीं लिखा, मोलर 0.4 कहाँ से लाया आपने? 0.5 है 0.5 सर क्वेश्चन में फिर गलत लिखा है. तो क्वेश्चन शीट है स्क्रीन में बोझना 0.5 मोलर, राइट, इज योर स्टॉक। जी सर। वर्किंग है 20 वर्किंग तुम लोगों को निकालना था, राइट? वर्किंग सॉल्यूशन, वर्किंग कंसंट्रेशन तुम लोगों को निकालनी है बिकॉज यू डोंट नो वर्किंग। तुम लोगों को पता है कि स्टॉक क्या है, तुम कितना ml ऐड कर रहे हो। तो ये जो 20 ml है जो हम बाकी सॉल्यूशन में निकालते थे, ये 20 ml यहाँ आएगा। कहाँ आएगा? ओके, नाउ यू विल कम टू नो कि आपका वर्किंग क्या है। तो 20 ml into 0.5, okay, divided by 1000 ml, okay, ml गया, सिर्फ मोलैरिटी बची, क्या हो गया? 0.01 molar. That means Rana-Afrin is good, so 2 points you are getting in your midterm extra. अगर midterm में तुम्हारे 25 में 25 आते तो that will be shifted to your final exam. तो but you have to remind me. सबको समझ आ गया? कोई शक, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? अब ये तब आपको नहीं आएगा जब आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अब आप क्या करें, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डिफरेंट केमिकल्स आप देखिए ऑनलाइन, फिर उनका डिफरेंट मोलैरिटी के सॉल्यूशन बनाना ये कीजिए शुरू, खुद कैलकुलेट कीजिए। एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, यू विल कम टू नो। फिर जब आप एक 1 मोलर फॉर्मूला NaCl बनाए, अब आप सोचिए आप इसमें अगर इसमें 1 मोलर का मैं 25 मिली मोलर बनाऊं तो मैं कैसे बनाऊंगा या मैं कैसे बनाऊंगी? तो उसमें क्या आपको करना है, देन यू यूज वर्किंग बाय स्टॉक इन वॉल्यूम, इसको ये कीजिए। अगर आपका ये पार्ट क्लियर हो जाता है और ये पार्ट आपको अच्छे से आ जाता है, आपको अच्छा एक्सपेरिमेंट करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, और कोई कैलकुलेशन ऐसी नहीं है जो आपको नहीं आएगी, जो आप लैब में यूजुअली यूज होती है। बट यू हैव टू काइंड ऑफ, यू डोंट हैव टू लर्न इट, यू हैव टू काइंड ऑफ रीजन विद इट कि ये कैसे हो रहा है। एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल ट्राई टू सी कि we will try to see that you are well versed with it. उसके बगैर हम आगे नहीं चलेंगे, क्योंकि ये आपका बेस बनेगा। पूरे सारे प्रैक्टिकल्स दैट यू विल बी डूइंग इन दिस कोर्स, this will be your base. Okay, so any questions you have? So what is this tris HCl? Is there any difference between simple HCl that we use in the lab? And Yes, it is different. Tris HCl is a buffer that we usually use in molecular biology laboratories. इससे हम tris TAE बनाते हैं, इससे हम TE बनाते हैं। It's a buffer. Buffer works on Lesch-Talier's principle. It undoes the change. Buffer हमेशा maintain pH को करता है। अगर pH में किसी वजह से change हो तो ये वापस उसको लाता है। It undoes that change. So that's why it's an important buffer that we usually use in your labs. एक होता है tris base. स्विच थोड़ा डिफरेंट, उसका मॉलिक्यूलर डिफरेंट होता है, वो भी हम यूज करते हैं एसडीएस वगैरह में। सो इट्स नॉट HCl, इट्स अ सॉल्ट। thank you, sir. कोई और सवाल, कोई शक?
सो इन लोगों ने सारी क्लासेस फ्राइडे को ही रखी है, बट आई वुड सजेस्ट अगर आप सब आपस में मिलकर जो आपका सीआर है तंजीला विल एंश्योर कि अगर हफ्ते में, क्योंकि फ्राइडे में टुडे इन द आफ्टरनून आई कैन नॉट टेक अनदर क्लास क्योंकि हमारी मीटिंग एक है वो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के साथ, सो आई विल बी बिजी. सो if you can kind of fix one more class in any other day of the week, टाइम टेबल आपके पास पता है. हाँ, मगर एक चीज का आपको ख्याल रखना है कि इसमें 50601 भी शायद मैं पढ़ाता हूँ, ओके, उसका ख्याल रखना, वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए, ठीक है. बट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में पहले मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा बहुत सारे, हर एक स्टूडेंट से अलग-अलग कि शो मी अ कैलकुलेशन एंड आई विल गिव यू द क्वेश्चंस, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. ओके, should we stop? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, you guys have a great day. Assalamu alaikum.